Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am covering the next topic of your chapter 4, that is mineral and energy resources. In my previous videos, I explained you about that mineral resources as well as the conventional sources of energy. We are doing the conventional sources of energy, and here we are now at the petroleum. As we all know that petroleum is also one of the conventional sources of energy. As students, one keep one thing in mind, that petroleum is a very important mineral fuel nowadays, or we can say that our whole lifestyle, or we can say that today's life is very much depend on petroleum. आज हमारी जो पेट्रोलियम के ऊपर हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट डिपेंड करता है. यू ऑल नो दैट आर व्हीकल्स आर रन विद द हेल्प ऑफ पेट्रोलियम. And if one day you are not able to got the petroleum, then all the vehicles should be stopped. वो क्या हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे. तो इस तरह से पेट्रोलियम जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ आई टोल्ड यू अबाउट द मेजर पेट्रोलियम कंजर्व एरियाज. कहाँ कहाँ पर हमें मेनली पेट्रोलियम मिल रहा है, रिजर्व एरियाज कौन कौन से हैं, and also the use of petroleum. It is widely used as a source of power. Petrol, diesel, kerosene oil are the byproducts of petroleum mineral oil. As an industrial power, it is widely used to run machines, generate electricity, and produce steam. Railway, engines, motor vehicles, and ships depends on it for their fuel requirements. It is used as a lubricant in machines and petrochemical industries for preparing rubber, synthetic fibers, etc. About 60% of the petroleum is obtained from the Middle East regions around Black Sea, Caspian Sea, Persian Gulf, and Red Sea have the largest reserves of petroleum of the world. It is mainly obtained from Southwest Asian countries. The countries with the world's biggest oil reserves are Venezuela, South Arabia, Canada, Iran, Iraq, Kuwait, UAE, Russia, Libya, Nigeria, and USA. All these are the major petroleum reserves. ओके तो 60% पेट्रोल हम कहाँ से ले रहे हैं, मिडल ईस्ट से. और पेट्रोलियम का यूज़ कहाँ कहाँ कर रहे हैं हम, रेलवे इंजन्स में, मोटर व्हीकल्स में, एज ए लुब्रिकेंट मशीन्स में, और पेट्रोलियम केमिकल इंडस्ट्रीज़ में. तो इन दिस वे पेट्रोलियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट रिजर्व्स जो हैं वो हमें ईरान, इराक, कुवैत और यूएई में मिलते हैं. ये बड़े इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं. And all these are in the वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़. वेस्ट एशिया में हैं ये सारे के साथ, साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं ये हमारे सारे के सारे. ठीक है, तो इन दिस वे पेट्रोलियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजर्वर फॉर अस नाउ. Okay, now petroleum reserves in India are Assam, Gujarat, and off the coast of Maharashtra. They are also found in delta region of Godavari and Krishna. Okay, तो इंडिया में ये हमारे पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं. नाउ कम ऑन नेचुरल गैस. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड अमंग द मिनरल ऑयल. ये भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल ऑयल है. हाउएवर सम टाइम एक्सक्लूसिव गैस रिजर्व्स आर ऑल्सो फाउंड इट. इट इज़ वाइडली यूज टू रन व्हीकल्स एज CNG, compressed natural gas, throughout the world. It is transported by pipelines over great distances. नेचुरल गैस क्या है, ये भी एक मिनरल ऑयल है, और हम इसको मेनली अपने किचन में यूज़ करते हैं एज कुकिंग गैस. इसके अलावा व्हीकल्स में CNG के रूप में यूज़ होती है ये. ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में जो इसका ट्रांसपोर्टेशन है वो हम थ्रू पाइपलाइंस करते हैं. Natural gas is found in Russia, Iran, Qatar, Asia, USA, Saudi Arabia. ठीक है, ये मेजर एरियाज़ हैं हमारे नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं. ठीक है, आसाम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा रीजन्स आर ऑल्सो आर नेचुरल गैस एरियाज. ओके, नाउ कम ऑन द थर्मल पावर. Thermal power station is a power plant in which the prime mover is steam driven. थर्मल पावर स्टेशन क्या है, पावर प्लांट्स हैं जिसमें प्राइम मूवर इज स्टीम ड्राइवन.
वो स्टीम से चलता है, ठीक है। वाटर ऑन हीटिंग टर्न्स इनटू स्टीम एंड स्पिन अ स्टीम टरबाइन। ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसमें हम क्या करते हैं कि पानी को गर्म करते हैं और उसकी हीट से, स्टीम से जो है वो टरबाइन पर फेंका जाता है स्टीम को, और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हम कहते हैं इसको, ठीक है। हाइडल पावर प्लांट्स आर जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर को डैम्स के थ्रू ऊपर से फेंका जाता है टरबाइंस पर और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो हाइडल पावर प्लांट्स है दे आर ऑल्सो नोन एज अ मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है एंड दैट वी आर यूजिंग फॉर मेनी अदर पर्पजेज ऑल्सो लाइक इरीगेशन। एंड वर्ल्ड की 1/4 इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर। वर्ल्ड की 1/4 इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाइडल पावर से प्रोड्यूस होती है। हाइडल पावर में जब सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हमारे पास हैं ब्राज़ील, नॉर्वे, ये हमारे इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ब्राज़ील, नॉर्वे एंड पैराग्वे, ठीक है। फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लार्ज डैम्स आर रिक्वायर्ड। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें डैम्स की ज़रूरत पड़ती है। डैम्स हम फॉर्म करते हैं और एट द लार्ज एरिया, ठीक है। और पेरिनियल रिवर्स आर आइडल फॉर दिस। पेरिनियल रिवर्स कौन सी होती हैं? वो रिवर्स जिनमें सारा साल पानी रहता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वी आर यूजिंग द रिवर वाटर एंड डैम्स, ओके। तो ये एक ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें ज़रूरत होती है, बट इट इज़ अ चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। बट लेटर ऑन ये हमारे पास चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है। इंडिया लाइक कनाडा, चाइना, जापान, ये डेवलप द वाटर रिसोर्सेज टू गेट द इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने अपने वाटर रिसोर्सेज को डेवलप किया है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। और अफ्रीकन कंट्रीज हैव अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर डेवलपिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया ने भी बहुत सारे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को जनरेट किया है एंड भाखरा नंगल, हीराकुड, नागार्जुन सागर एंड सरदार सरोवर, ये बड़े इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस एग्जाम्पल हैं हमारे डैम्स के दैट वी आर यूजिंग टू प्रोड्यूस द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. So all these are the conventional sources of energy. Now come on the non-conventional sources of energy. First of all, you may know that what are the non-conventional sources of energy. Non-conventional sources of energy are those sources that we are not using from the long time period, but we are start using these sources of energy now recently. हमने रिसेंटली ही इनको यूज़ करना स्टार्ट किया है. सो दीज आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है. और वन मोर थिंग दैट दीज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी डोंट हैव मच ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट के ऊपर भी किसी भी तरह का बुरा प्रभाव नहीं डालते. डिपेंडेंसी ऑन दीज सोर्सेज विल इंक्रीज मैनी फोल्ड्स. और इन रिसोर्सेज पर जो डिपेंडेंसी है वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है. तो इस तरह से हमारा जो सोलर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है. एंड दीज सोर्सेज आर वेरी मच हेल्पफुल इन आवर फ्यूचर. चलिए, द वेरी फर्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज सोलर एनर्जी. सन इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ अनलिमिटेड एनर्जी, स्पेशली इन द ट्रॉपिकल जोन. It can be tapped to get maximum output nowadays. Solar energy is used for a number of purposes. Solar energy, that the energy we are getting from the sun, जो हम सन से ले रहे हैं, और अनलिमिटेड एनर्जी हमें मिल रही है सन से. बहुत सारे सोलर इक्विपमेंट्स आज के डे में हम यूज़ करते हैं, लाइक सोलर कुकर्स, गीज़र्स, कार्स, सोलर ड्रायर्स, सोलर लालटेन्स, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, एक्सेट्रा.
solar air conditioning, etc., people are taking initiative to make it more cost effective. Canada, France, Germany, India, Japan, USA are some countries doing research and promoting its utilization in their countries. ठीक है, आज के टाइम में हम सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम सोलर एनर्जी से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं. ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट इज विंड एनर्जी. विंड एनर्जी, द एनर्जी दैट प्रोड्यूस्ड विद द स्पीड ऑफ ब्लोइंग विंड. विंड की वेलोसिटी से हम जिस एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं हम उसे विंड एनर्जी कहते हैं. दैट इज यूज for many purposes. In the areas of high wind velocity, wind is used to generate energy. एनर्जी को यूज़ करने के लिए हम विंड का यूज़ कर रहे हैं. कोस्टल एरियाज में दिस इज़ वेरी मच आइडल. विंड एनर्जी इज़ मेनली यूज फॉर पंपिंग वाटर, grinding grains, sailing and electricity generation. It is developed in the coastal region of European countries, especially Netherlands, Japan, USA. Tokyo, wind power is used to run the air condition system of buildings also. Yes. टोक्यो में विंड एनर्जी का यूज़ हम एसी तक चलाने के लिए करते हैं बिल्डिंग्स में. जस्ट सी दैट कितनी पावर है विंड में और हाउ वी आर यूजिंग इट पॉजिटिवली. बच्चे ये बड़े इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं क्योंकि इनकी आने वाले टाइम में हमें कोई कमी नहीं होने वाली. और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि देयर इज़ नो नीड टू कंजर्व दीज एनर्जी रिसोर्सेज. सन लाइट को हम कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं है. विंड एनर्जी, हवा चल रही है, इसको कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो ये कंजर्व वाले एनर्जी सोर्सेज नहीं है जो आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, या हम ये कहें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को ये अवेलेबल नहीं होंगे. इट कुड नॉट बी हैपन. That's why these non-conventional sources of energies are more important as compared to the conventional sources of energy. Now here is geothermal energy. What is geothermal energy? Exactly, this is the energy that produced with the internal heat of the earth. अर्थ की जो इंटरनल हीट है उससे जो एनर्जी जनरेट होती है दैट इज जियोथर्मल एनर्जी. बेटा इन द अर्थ, एज वी ऑल नो दैट अर्थ इज हॉट फ्रॉम इट्स इनर. अंदर से अर्थ क्या है, गर्म है, और इसका जो भी मटेरियल है वो मॉल्टन फॉर्म में है. अब वो जो गर्मी है वो क्रैक्स के थ्रू जो है सम टाइम ऊपर आ जाती है, हीट प्रोड्यूस होती है, स्टीम बन जाती है, एक तरह से प्रेशर डालती है और वो ऊपर आ जाती है. और जब वो हीट ऊपर आ जाती है तो अर्थ में जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी गर्म हो जाता है. ठीक है, और सम टाइम ये जो वाटर है ये इतना गर्म हो जाता है कि ये हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के चश्मे की रूप की तरह अर्थ के अंदर से बाहर आ जाता है, फट कर बाहर आता है. और उस गर्म पानी को हम क्या लेते हैं, हम टरबाइन पे ले लेते हैं और वहाँ से जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. उसमें पानी ऑटोमेटिकली गर्म है. ठीक है, तो ये जियोथर्मल एनर्जी है, दैट इज इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ जनरेट जियोथर्मल एनर्जी प्रोमिनेंट इन वॉल्केनिकली एक्टिव एरियाज वेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉट स्प्रिंग इज हाई. जहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स जो है वो नॉर्मली आते रहते हैं. ठीक है, कंट्रीज लाइक आइसलैंड, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, यूएसए, दीज आर द मेजर जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, और वी कैन से कंट्रीज. ठीक है, इंडिया में मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर हार्नेसिंग द जियोथर्मल एनर्जी. ठीक है, तो दिस इज आवर जियोथर्मल एनर्जी, ये हमारी जियोथर्मल एनर्जी है. नाउ कम ऑन द न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम द एटम्स और न्यूक्ली ऑफ एटम्स. एटम्स क्या होते हैं ये सबको पता है. ठीक है, तो माय टॉपिक इज
रीजन्स ऑफ ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ जो है वो हम बहुत एरिया में कर रहे हैं, एटम्स का यूज़ कर रहे हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्टरनेटिव टू कैन रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेस। ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए भी हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। इन द वर्ल्ड यूएसए, फ्रांस, रशिया, साउथ कोरिया, जर्मनी, चाइना एंड कनाडा, these are the major nuclear energy produced states, or we can say countries. इंडिया में झारखंड, राजस्थान लार्जेस्ट डिपॉजिट है हमारे पास यूरेनियम एंड थोरियम के। आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु, उड़ीसा। न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड एट कैगा इन कर्नाटका, कलपक्कम एंड कुदुकुलम इन तमिलनाडु। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं, जहाँ से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन आर कंट्री मेजरली 6 थर्मल पावर स्टेशंस वी हैव। 6 स्टेशंस है हमारे पास न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, एंड दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द एनर्जी रिसोर्सेज टू द ऑल ओवर द कंट्री। ओके, तो दिस ऑल अबाउट योर nuclear energy. Now the last is tidal energy and biogas. After this we have the conservation of energy resources. अब बायोगैस क्या है वो आप सबको पता है। बायोगैस, हाँ, तो बायोगैस क्या है वो हम सबको पता है। बायोगैस क्या है? इट इज़ अ गैस दैट प्रोड्यूस विद द ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि डेड प्लांट्स, एनिमल्स और किचन डंग से हम जो गैस प्रोड्यूस करते हैं हम उसको बायोगैस कहते हैं। एंड दिस गैस कन्वर्टेड इनटू ए गैसियस फ्यूल, और इस गैस को हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं इन आर किचन फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग द प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, लाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं और ये हमारे लिए ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोड्यूस करती है। नाउ डे बायोगैस इज़ वेरी मच यूजेबल इन द रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में बायोगैस प्लांट्स जो हैं बहुत ज़्यादा लगाए भी गए हैं इन आर कंट्री, एंड उसको इसके यूज़ को इंक्रीज़ करने की कोशिश की जा रही है। बायोगैस प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो बायोगैस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। द वन इज़ टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, हम कहाँ से करते हैं? टाइडल एनर्जी टाइड से। टाइड्स एज वी ऑल नो दैट सी में पानी ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे गिरता है, उसे हम टाइड्स कहते हैं। ऊपर चढ़ना और नीचे गिरना ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अर्थ की। ठीक है, अब टाइडल एनर्जी हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं कि जब पानी ऊपर चढ़ता है तो उसको वहाँ रोक लिया जाता है और फिर उसको कहाँ गिराया जाता है? टरबाइन पर। ठीक है, टरबाइन पर गिराया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब टाइडल एनर्जी बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी के जहाँ पर कम ओपनिंग होती है, जहाँ कम चौड़ा होता है सी, वहाँ पर डैम्स को बनाकर हम टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। फ्रांस, रशिया, गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव द ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स। ठीक है, तो ये हमारी टाइडल एनर्जी है। सो ऑल दिस इज अबाउट योर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। Now come on the comparison between the conventional sources of energy and non-conventional sources of energy. इनके बीच का एक कंपैरिजन है, ये आप खुद पढ़ेंगे बच्चे, मैं नहीं बता रही हूँ क्या है। ये रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, एक्सपेंसिव हैं कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लेस एक्सपेंसिव हैं। एग्जाम्पल हैं हमारे पास कन्वेंशनल के, और यहाँ पर कम इधर नॉन कन्वेंशनल के एग्जांपल्स आप दे सकते हो। एंड वन मोर थिंग दैट हाइडल पावर सर्व एज एयर पॉल्यूशन रिलेटेड एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं ये इन्वायरमेंट पर डिग्रेड करने में करते हैं। लाइक कोल जब जलता है तो धुआं निकलता है, ठीक है, तो वो हमारे हमें इफ़ेक्ट करते हैं। बट जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं दे डज नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन एंड इको फ्रेंडली हैं। ये क्या हैं? इको फ्रेंडली हैं। तो दिस इज़ योर कंपैरिजन बिटवीन द conventional sources of energy and non-conventional. The last topic of the chapter is about that why there is a need to conserve the energy sources. वही सेम थिंग है जो हमने मिनरल सोर्सेज में पढ़ा
कि ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, बट दे आर लिमिटेड इन अमाउंट. एंड वन मोर थिंग, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लिमिटेड इन अमाउंट है, ये कीप इन माइंड. दैट इज़ एग्जॉस्टेबल एंड दैट इज़ लिमिटेड इन अमाउंट. बट जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो हमारे पास लिमिटेड इन अमाउंट नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू बी यूज दैम जुडिशली. हमें उन्हें जुडिशली यूज़ करना पड़ेगा. सो दिस इज़ अबाउट योर चैप्टर 4, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.